Hello guys, this is Hari from English classes and welcome to my channel. Today I'm just gonna to tell about degree, types of degree and formation of a degree. So this video will be very interesting for you all. So please you must watch till the last without skipping it so that you will get lot of the things related to this degree. And whatever the problem will just come, I will just try to resolve it because I am just going to try to cover a lot of the things related to the degree. So this video and this lecture will be very interesting for you all. So now we just going to learn about a degree. Okay guys, so see please. तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि डिग्री होता क्या है. So degree is a word which change the form of adjective or adverb. You know what is adjective? Adjective is a word which qualifies about noun or pronoun, that is a adjective. And you know what is adverb? Adverb is a word which qualifies about adjective, verb and itself, that is called adverb. We have already studied about adjective and adverb, and if we have lot of the knowledge, if we have deep knowledge related to degree, related to adjective or adverb, then it is a very easy to just learn about a degree because this chapter is completely based on the adjective or the adverb. So I'm just going to try to cover lot of the things related to degree guys, so please watch here. Degree is that word which change the form of adjective or adverb. So guys, just try to understand with me that degree is a word or degree is that word which change the form of adjective or adverb. डिग्री उस वर्ड को कहते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्म को वो चेंज करता है, बदलता है, ठीक उसी को हम डिग्री कहते हैं. जैसे मैंने बोला गुड, राइट, तो गुड क्या है भाई, एक आपका ये एडजेक्टिव है. इसके फॉर्म को मैं देखिए कैसे बदलता हूँ. गुड से मैंने कर दिया बेटर, राइट, और बेटर से मैंने कर दिया बेस्ट. तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, जो गुड है वो आपका एडजेक्टिव है, गुड से मैंने बेटर में कन्वर्ट किया और बेटर से मैंने बेस्ट बनाया, तो इट इज एडजेक्टिव. और इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया सीडी में, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एसडी में. अब आप एक बात और जानने का प्रयास कीजिए कि जो आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में होता है और हम उसे क्या करते हैं, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं. तो सिंपली हम एक वर्ड में और एक लाइन में जानने का प्रयास करते हैं कि डिग्री उस वर्ड को कहते हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब के फॉर्म को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक उसी को हम क्या कहते हैं भाई, डिग्री कहते हैं. Now we are just going to discuss about types of degree. So there are three types of degree. One is positive degree, second is comparative degree, and third is that is a superlative degree. Okay guys, so see please. There are types of degree. Types of degree. First is positive degree. Okay, positive degree. Now next one, that is comparative degree. Comparative degree. And the last one, that is about superlative degree. Superlative degree. So guys, हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि जो आपका डिग्री होता है वो तीन प्रकार का होता है. एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, जो पॉजिटिव डिग्री होता है वो एज डॉट 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 एज से कंपेयर करता है और जो आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है वो आपको क्या करता है, देन से कंपेयर करता है. ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वह किसी को कंपेयर तो करता है, लेकिन इसमें हम जनरली करते क्या कि जो एडजेक्टिव और जो एडवर्ब होता है उसको सिंपली डायरेक्ट थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक उसी को हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री. ओके, नाउ वी जस्ट हैव टू नो वन मोर थिंग दैट पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है अच्छा, कंपैरेटिव का मतलब थोड़ा और अच्छा, और सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे अच्छा, जिसको कहते हैं बेस्ट कहते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली डिग्री इज दैट टाइप ऑफ चैप्टर
where we can compare, okay, between two persons, between somebody to somebody, somebody to something और something to somebody। जब हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या किसी प्लेस को हम जब कंपेयर करते हैं, so guys here we are just going to see about positive degree, comparative degree and the superlative degree। You know very well that positive degree is going to compare by as, it means it is going to express by as dot 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 as, okay। You know this is a blank, and why have I given the blank here? Because here adjective or adverb will just come, okay। So before adjective there should be as, and after adjective there should be as, okay। So that is about as dot 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 as। Now we can see that is a comparative degree। What is a comparative degree? Comparative degree is that which compares by then, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, देन से किसी भी पर्सन्स को, प्लेस को और थिंग को कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे देन का यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री उस डिग्री को कहते हैं जो सिंपली एडजेक्टिव या एडवर्ब को सिंपली थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक उसी को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। So here we are just going to learn about one by one, that is a positive degree, comparative degree and the superlative degree, okay guys। So see please, number one, that is positive degree, okay। positive degree, positive degree is that okay, which compares by as dot 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 as। हमने यहाँ पे क्या सीखा कि पॉजिटिव डिग्री इज दैट, पॉजिटिव डिग्री उसे कहते हैं जो एज से कंपेयर करता है, जो एज को एक्सप्रेस करता है, ठीक उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। So here we have just written positive degree is that which compares by as। पॉजिटिव डिग्री उस डिग्री को कहते हैं जो एज से कंपेयर करता है, ठीक उसी हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री को हम यहाँ पे बोल सकते हैं धनात्मक बोलेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स को देखता हूं, जैसे राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम। अगर ये वाली सेंटेंस को आपको बनाना है, सपोज यू वांट टू चेंज दिस सेंटेंस, देन हाउ विल यू डू? ओके, सिंपली यू हैव टू डू वन थिंग, दैट राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम। तो उतना ही और जितना, ठीक है, उतना जितना, तो इसी को हम एज और एज कहते हैं। बीच में आपका क्या है, एडजेक्टिव, जिसको कहते हैं गुड। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, राम। अब यहाँ पे देखिए कि है तो जो आपका प्रेजेंट फॉर्म में है, तो राम इज एज गुड एज, किससे भाई, श्याम से। तो यहाँ पे लिखूंगा श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम। राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम। अगर मुझे बोलना है कि तुम उतना ही लंबा हो जितना कि मैं, ठीक है, यू आर एज टॉल एज आई, ओके। अगर मुझे बोलना है श्याम उतना ही तेज है जितना कि उसका भाई, तो श्याम इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। सरिया उतना ही चौड़ा है जितना कि हजारीबाग। सरिया इज एज ब्रॉड एज हजारीबाग। सरिया रेलवे स्टेशन उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि कोडरमा रेलवे स्टेशन। सरिया रेलवे स्टेशन इज एज फेमस एज कोडरमा रेलवे स्टेशन। तो आई हैव स्पोकन फ्यू सेंटेंसेस एंड यू जस्ट गॉट वेरी केयरफुली, ओके, एंड क्लियरली दैट वेयर वी कैन यूज एज। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एज है और इस जगह पे एज है, और ये दोनों के बीच में जो आपका है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसी को हम क्या बताएंगे, ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर आपका एडजेक्टिव के पहले और एडजेक्टिव के ठीक बाद एज आता हो, तो उसे हम क्या बताएंगे, उसे हम एडजेक्टिव बताएंगे। किस फॉर्म में बताएंगे, पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में बताएंगे। जैसे मैं कुछ और सेंटेंस को देख लेता हूं, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज, ओके, रीता। सीता उतना ही सुंदर है जितना कि रीता, एज ब्यूटीफुल एज। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एज को एक्सप्रेस कर रहा है, उसे हम कंपेयर कर रहा है। सीता को किससे कर रहा है, रीता से कर रहा है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं
they are as famous, they are as famous as you, वे लोग उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि आप। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है here in this sentence, okay, we may see they and you, ये दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? हिम्मत से किया जा रहा है। तो आप जो as famous as को जो देख रहे हो, इसी को हम बताएंगे पॉजिटिव डिग्री। कुछ और सेंटेंस को देखता हूं। you were as old as, okay, as your bro, okay, you were as old as your bro। in this sentence we may see, एक आपका तुम है, तुम उतना ही बड़े थे जितना कि तुम्हारा भाई। तो यहाँ पे यू को और तुम्हारे भाई से, मतलब योर ब्रो से, दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। और कंपेयर करने वाला कौन है भाई? एज ओल्ड एज। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं एज ओल्ड एज जो है वो आपका पॉजिटिव डिग्री है। सो गाइज हियर वी जस्ट गॉट अबाउट द पॉजिटिव डिग्री। इट एक्सप्रेसेस as ... as। You know why have I given blank here? Because in that of the place adjective or adverb should be written there, okay? So for that I have just given the blank before as and after as, okay? So see please, now we are just going to learn about comparative degree. What is comparative degree? We just have to see in this video what is comparative degree. So guys, now we are just going to learn about comparative degree. What is comparative degree? So see please, I have just written here comparative degree, okay? Comparative degree is that which compares by then, okay? Now see, there is than and one more than I have written, okay? This is called homophones। यहाँ पे भी देन है और यहाँ पे भी देन है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये आपको क्या कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है, और ये आपको क्या शो कर रहा है? ये कंपेयर शो कर रहा है। तो यू हैव टू टेक केयर दैट आई हैव जस्ट रिटन हियर अबाउट देन, ओके, जो कंपेयर करता है, ना कि आपको ये वाला देन आपको नहीं लिखना, ठीक है? तो कंपैरेटिव डिग्री उस डिग्री को कहते हैं जो दो व्यक्तियों को, दो वस्तुओं को या दो किसी चीजों को क्या करता है? कंपेयर करता है। और कंपेयर करने के लिए स्पेशली हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो देन करेंगे, ठीक है? यानी कि किसी भी सेंटेंस, अगर वह सेंटेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड हो तो वह सेंटेंस में आप अवश्य रूप से देन का प्रयोग करें, अदरवाइज क्या होगा कि आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है? नाउ वी हैव टू मोर फ्यू थिंग्स, ओके? सी प्लीज, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते समय कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हुए भी कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ विल वी गो फॉर चेंजिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव, ओके? तो सी प्लीज, हम यहाँ पे आपको साइड से बताता हूँ। सपोज ये आपका पीडी है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, और ये आपका सीडी है जिसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपका एसडी है, दैट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। मैंने यहाँ लिखा टॉल, राइट, टॉल। तो अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इसमें क्या लगेगा? टॉलर, ओके? ये कैसे लगा मैं बताऊंगा बाद में कैसे लगा टॉलर, ठीक है? तो सिंपली कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं? ईआर लगाते हैं। और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है ईएसटी, ठीक है? तो ये हो गया टॉलेस्ट। लेकिन ये जो आपका टॉल है वो आपका है सिंगल सिलेबल, ओके? सिंगल सिलेबल। तो जब सिंगल सिलेबल होता है तो ER फॉर द कंपैरेटिव एंड EST इज यूज्ड फॉर द सुपरलेटिव डिग्री। बट व्हेन वी हैव अ डबल सिलेबल वर्ड, for that what do we have to do? Simply we just have to add for comparative degree more and most is used for the superlative degree। अगर मुझे बात करना है ब्यूटीफुल के बारे में, ठीक है? तो अगर ब्यूटीफुल के बारे में बात करूं तो ब्यूटी प्लस फुल, ये दोनों जो वर्ड है ये डबल सिलेबल वर्ड है, और जब डबल सिलेबल वर्ड होता है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हम यहाँ पे मोर का यूज करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, ओके गाइस, मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे यूज करेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो when we just go for a study about formation of a degree, at that time I will just clear lot of the things about
positive degree, comparative degree and the superlative degree, that how to change from positive to comparative and the superlative degree. So it is only the trailer about that of the things which I have just discussed right now. Okay, so see please. तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री उस डिग्री को कहते हैं जो देन से कंपेयर करता है. अभी मैंने पहले ही बताया कि किसी भी दो व्यक्तियों को या दो वस्तुओं को कंपेयर करता है और उस कंडीशन पे हम देन को अप्लाई करते हैं. जैसे राम इज older than ओके his brother. अब ये वाली सेंटेंस में देखिए कि जो राम है वो अपने भाई से बड़ा है. राम इज ऑल्डर देन हिज ब्रदर. राम अपने भाई से क्या है, बड़ा है. तो यहाँ पे जो बड़ा है वो किस एज में है भाई, ये उम्र में है कि राम जो है वो अपने भाई से बड़ा है, उम्र में बड़ा है. अगर मैं बात करूं हरी इज वीकर देन हिज ब्रदर. और ये वाली सेंटेंस में देखिए कि जो हरी है वह अपने भाई से वीकर यानी कि कमजोर है. हरी जो है वह अपने भाई से कमजोर है, यानी कि ये बंदा जो है वो कमजोर है और ये जो बंदा है वो स्ट्रांग है. यहाँ पे हरी को हिज ब्रदर से कंपेयर किया जा रहा है. कंपेयर करते समय हमने क्या देखा, देन लगाया है दोनों सेंटेंस में और दोनों के देखिए एडजेक्टिव के साथ er और यहाँ भी लगा है er. तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय er लगाया जाता है, लेकिन वह जो आपका एडजेक्टिव जो होगा वो डबल सिलेबल ना होकर के जबकि सिंगल सिलेबल में होना चाहिए. ठीक है, कुछ और सेंटेंसेस को मैं देख लेता हूं. जैसे दे आर stronger than you. वे लोग आपसे ज्यादा मजबूत हैं, वे लोग आपसे ज्यादा मजबूत है. तो ये वाली सेंटेंस में देखिए कि जो वे है और जो यू है तो ये दोनों को कंपेयर किया जा रहा है. किससे किया जा रहा है, स्ट्रॉन्गर देन से. तो ये वाला जो वर्ड है देन, ये कंपेयर किया किसको, दे को कंपेयर किया जा रहा है यू से. So guys, here we just got about the comparative degree and it is used for the compare. Okay, simply we just have to see then definitely it will be very easy to recognize and identify that it is a sentence of the comparative degree. So now we are just going to discuss about the superlative degree. This is the last of the definition. Okay, then we just have to move for the next one. So see, now we are just going to discuss about superlative degree. Okay, what is superlative degree? See please. देखिए सुपरलेटिव डिग्री इज दैट which compares by third form of adjective. अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि सुपरलेटिव डिग्री इज दैट विच कंपेयर्स बाय थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. जो एडजेक्टिव का जो थर्ड फॉर्म होता है उसी के साथ कंपेयर किया जाता है. जब उसके साथ कंपेयर किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री. मैंने क्लास के बिगिनिंग में ही बताया था कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, ठीक ठाक होता है, और कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है थोड़ा और अच्छा, ठीक है. और सुपरलेटिव डिग्री जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है सर्वोपरि, जिसको कहते हैं सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, ठीक है. जैसे मैं गुड का बारे में बात कर रहा हूं तो गुड, बेटर, बेस्ट. तो गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब थोड़ा और अच्छा, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा. तो यहाँ पे जो मैं पढ़ने वाला हूँ सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, ये सर्वोपरि दिखाएगा, ये आपको बेस्ट दिखाएगा, ठीक है. चाहे आपको वो क्वालिटी में हो या चाहे आपका इनइक्वालिटी में हो, ठीक है. ये दोनों केसेस में आपको सर्वोपरि दिखाएगा, चाहे वो लो ग्रेड में हो चाहे वो आपका अपग्रेड में हो, ठीक है गाइस. सो नाउ वी जस्ट हैव टू सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री. जैसे अगर मैं बात करता हूं कि राम अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का है, तो कैसे मैं बोलूंगा, राम इज द टॉलेस्ट, Ram is the tallest boy. Ram is the tallest boy in his class. In his class. So in the sentence tallest, okay. So this is a superlative degree.
और जब भी सुपरलेटिव डिग्री होता है तो ठीक उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल्स आने के दा का यूज होता है, ठीक है। और उसके जस्ट बाद आपको बॉय का यूज करना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है, कि जो राम है वो अपने क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो राम को कंपेयर किया जा रहा है उसके क्लास के सारे बच्चों से, तो यहाँ पे जो टॉलेस्ट जो वर्ड है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि इसी वर्ड के जरिए से ये राम को पूरे क्लास के स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल वे में हमें जानना है कि सुपरलेटिव डिग्री इज दैट which change the third form of adjective that is called superlative degree. Okay, so see please next one. Radha is the most beautiful. Radha is the most beautiful girl in her village. In her village. अब ये वाली सेंटेंस में देखिए कि जो राधा है वो अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की है। तो इन दिस सेंटेंस वी मे सी दैट इज द मोस्ट, ओके, दैट इज द मोस्ट। Why have I written most? Because it is the double syllable word, और जब डबल syllable word होता है तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय हम most को यूज करते हैं, ना कि est को यूज करेंगे, ठीक है। और जस्ट उसके पहले हम फिर द को यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म में है, तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर विलेज। राधा अपने गांव की सबसे सुंदर लड़की है। जैसे मैं बात करूं, विराट कोहली भारतीय कप्तान का सबसे आक्रामक बैट्समैन है, तो विराट कोहली इज द बेस्ट एग्रेसिव बैट्समैन इन इंडियन टीम। ओके, अगर मैं बात करूं कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय कप्तान का विस्फोटक बल्लेबाज है, सबसे तेज विस्फोटक बल्लेबाज है, तो उस केसेस में हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे कि जब सारे चीजों को कंपेयर करके किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को काफी मतलब सर्वोपरि दिखाया जाता है, तो उस केसेस में हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं। तो गाइस हियर वी जस्ट गॉट अबाउट पॉजिटिव डिग्री, comparative degree and superlative degree, and in the next part of the video I will just tell you about formation of a degree and the function of a degree. Okay, and in the next part of the video I will just tell you about that how to change from positive to comparative and the superlative degree, because that video will be very interesting for you all. So please you just continue with me and just watch this video till the last. Definitely you will get a lot of things, I assure you. Okay guys.